ون بیلٹ ون روڈ تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی منصوبہ، ایک ایسا منصوبہ جو عالمی تجارت کو بدل ڈالے گا۔ سپر پاور امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود دن بدن کامیاب، ایک ایسا انقلابی منصوبہ جو تجارت میں امریکہ اور یورپ کی برتری خاک میں ملا ڈالے گا۔ چین دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی قوت بننے جا رہا ہے اور سی پیک کی بدولت پاکستان کی قسمت بھی چمکنے والی ہے۔ یورپ، افریقہ اور ایشیا کو جوڑنے والا منصوبہ جس میں اب تک 78 ممالک شامل ہو چکے ہیں، بھیانک عالمی سازشوں کے باوجود ون بیلٹ ون روڈ کی کامیابی سے مغرب میں ہلچل ہے۔ امریکہ اور یورپ یا یوں سمجھے مغرب شدید خوف میں ہے چین سے اس وقت، کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے چین کا، ایسا عظیم منصوبہ ہے جو 3 بر اعظموں یعنی ایشیا، افریقہ، یورپ کو جوڑ رہا ہے۔ 78 ممالک شامل ہیں، ایک تجارتی صنعتی انقلاب آ رہا ہے دنیا میں، یعنی تاریخ تبدیل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی سپرمیسی، تو اس کے خلاف عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا سازشیں کر رہی ہے۔ دوستو، یہ وہی منصوبہ ہے جو پاکستان میں سی پیک کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان اس کا اہم ترین جز ہے، کیونکہ گوادر سے خنجراب تک راستہ جڑ کے اور پھر یہ چین کو پہنچے گا، تو گویا یورپ سے جو راستہ آ رہا ہے وہ پاکستان کے ذریعے چین تک پہنچ رہا ہے۔ بھارت کیا سازشیں کر رہا ہے، بڑی عجیب و غریب داستان ہے، مگر یہ بھی ہے کہ 7 سال میں یہ منصوبہ امریکہ کی تمام تر مخالفت کے باوجود کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو امریکہ کی سپرمیسی خواب بن جائے گی، دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے 2013 میں جب یہ منصوبہ شروع کیا تو امریکہ اور اس کے دیرینہ حلیف یعنی یورپی ممالک بھاپ گئے کہ ون بیلٹ ون روڈ ان کی تجارتی بالادستی کا خاتمہ کر دے گا۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے، آج بھی اس منصوبے کی ہر سطح پر مخالفت کرتی ہے، ہر طرح ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اس منصوبے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ امریکہ کے حلیف بیشتر یورپی ممالک چینی منصوبے سے جڑ چکے ہیں، چونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ اس منصوبے سے علیحدہ رہنا عالمی تجارت سے علیحدگی ہوگی۔ یہ منصوبہ زمینی راستے کے ذریعے اور بحری گزرگاہوں کی صورت میں تینوں بر اعظموں کو جوڑ رہا ہے۔ سڑک، ریلوے ٹریکس اور بحری راستوں کی صورت میں تینوں بر اعظم ایک منصوبے سے جڑے ہیں۔ اس منصوبے کا اہم ترین حصہ جو دنیا کو چین سے ملا رہا ہے، پاکستان میں گوادر سے خنجراب تک ہے، اسے سی پیک کہا جاتا ہے۔ سی پیک جو پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کے لیے گیم چینجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جو امریکہ کی ایما پر خطے میں چین کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان پاکستانی دشمنی میں سی پیک کو بھی ناکام بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، امریکہ کی ایما پر عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی چینی منصوبے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، مگر پھر بھی گزشتہ 7 سال میں یہ منصوبہ ہر لمحے کامیابی کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی پریشانی ہے امریکہ کو، جو اس عظیم منصوبے کو بے بسی سے کامیاب ہوتا دیکھ رہا ہے۔ مگر کیا ون بیلٹ ون روڈ اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا پہلا منصوبہ بھی چین کا ہی تھا۔ اسے شاہراہ ریشم یا سلک روڈ کہا جاتا ہے۔ شاہراہ ریشم چینی سلطنت ہان کے دور میں 130 قبل مسیح یورپ سے تجارت کا پہلا زمینی راستہ تھا، جو سن 1453 تک جاری رہا۔ عثمانی سلطنت نے جب چین سے تجارتی روابط توڑے تو یہ روڈ بند کر دیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شاہراہ ریشم بھی ایشیا، افریقہ اور یورپ کے 40 ممالک کو جوڑتی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ون بیلٹ ون روڈ دراصل شاہراہ ریشم کی توسیع ہے۔ شاید اسی باعث اسے سلک روڈ اکنامک بیلٹ بھی پکارا جاتا ہے۔
यूं जाने कि ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, कदीम शाहराह रेशम के ज़मीनी रास्ते की बहाली और दूसरे हिस्से में समंदरी रास्तों का रूट बनेगा। चीन के मुताबिक ये मंसूबा 2049 तक मुकम्मल होगा, जिसमें ज़मीनी रास्तों पर मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन, सनती मराकज़, फैक्ट्रीज, बिजली घर और दीगर सहूलियात शामिल होगी। इस अजीम मंसूबे में ईरान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, आज़रबाईजान, बहरीन, लबनान, तुर्की, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया, रूस, मंगोलिया, मालदीव, कीनिया, एथोपिया, जनूबी अफ्रीका, योगंडा, नाइजीरिया, मिस्र, मराकश, लीबिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, इटली, बल्गारिया, फिनलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, यूनान, पुर्तगाल, पोलैंड, रोमानिया। गोया यूं जाने 195 में से 78 ममालिक इस मंसूबे का हिस्सा हैं। जो बाकी बचे हैं वो ज्यादा अरसे वन बेल्ट वन रोड को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिका चीन सर्द जंग के हवाले से गुज़िश्ता किस्तों में हमने तफसील से जायजा लिया कि अमेरिका और यूरोप के बाज़ ममालिक किस तरह चीन की माशी तरक्की को निशाना बना रहे हैं। चीन जो न सिर्फ खुद को माशी सुपर पावर बना चुका है, अब टेक्नोलॉजी में भी मगरिब को पीछे छोड़ता जा रहा है। गुज़िश्ता अक़सात में इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट का जायजा लिया। हम ये भी जानते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चंद सालों बाद चीन माशी तौर पर अमेरिका को शिकस्त दे देगा। वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे के जरिए चीन दुनिया भर में तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर पूरी दुनिया को तिजारत का शराकतदार बना रहा है। इस मंसूबे की लागत तकरीबन $8 ट्रिलियन बताई जाती है। अमेरिका को क्या शिकायत है? इस वक्त अमेरिका ने चीन के खिलाफ तिजारती जंग छेड़ रखी है। हकीकत तो यह है कि अमेरिका चीन को सबसे बड़ा हरीफ समझता है, तो ये गलत भी नहीं। चीन माशी मुहाज पर मगरिब को शिकस्त दे चुका, टेक्नोलॉजी के मुहाज पर बड़ी तेजी से अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ रहा है। अमेरिका को यह अच्छी तरह पता है कि चीन वाहिद कुव्वत है जो जंग लड़े बगैर अमेरिका की सुपरमेसी खत्म कर डालेगा। अमेरिका जानता है कि इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के बगैर सुपर पावर का टाइटल सिर्फ दिखावा है। जिस तरह अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिका और उसके यूरोपीय हलीफ चढ़ दौड़े, ये मुमकिन ना होगा। जिस तरह अरब ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ का दिलासा देकर तेल की दौलत हासिल की जाती है, ये भी मुमकिन नहीं रहेगा। अमेरिका कमज़ोर होता है तो इसराइल और यूरोपीय हलीफ भी दुनिया में मनमानियां नहीं कर सकेंगे। यही वजह है कि अमेरिका और आलमी इस्टेब्लिशमेंट चीन के खिलाफ जंग के सिवा हर हथियार आजमा चुके मगर नाकाम। गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि आलमी माहिरीन अमेरिका और चीन के दरमियान जंग को खारिज अज़ बहस करार नहीं देते, चूँकि शायद अमेरिका के पास यही आखिरी रास्ता बचा है। तिजारती जंग और साजिशों के अलावा चीन के खिलाफ एक तिजारती इत्तेहाद भी बनाया गया है, जिसे सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI का नाम दिया गया है। इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और बाज़ छोटे ममालिक शामिल हैं। इस इत्तेहाद का मकसद चीन के वन बेल्ट वन रोड के मुकाबिल सप्लाई चेन के निज़ाम को खड़ा करना है। अमेरिका समझता है कि अगर वन बेल्ट वन रोड कामयाब हो गया तो चीन का असर रसूख दुनिया भर में फैल जाएगा। मगर हकीकत यह है कि अमेरिका अब तक सुपर पावर होने के बावजूद इस मंसूबे को रोकने में कतई तौर पर नाकाम रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका भारतीय इस्टेब्लिशमेंट को भी चीन के खिलाफ माशी, सियासी, अस्करी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जनूबी एशिया में चीन का असर व रसूख रोकने के लिए भारत अमेरिका का कदीम हलीफ है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी हुकूमत अमेरिकी मोहरे के तौर पर चीन के खिलाफ काम कर रही है। सरहदों की खिलाफ वर्जी हो या तिब्बत में बागियों की सरपरस्ती, ताइवान से ताल्लुकात हों या फिर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका में चीनी असर व रसूख रोकना, भारत हर मरहले पर खित्ते में चीन के खिलाफ है। वन बेल्ट वन रोड में पाकिस्तान का अहम किरदार है। गवादर से खंजराब तक गुजरगाह दुनिया को चीन से मिलाने के लिए अहम तरीन है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन पाकिस्तान का कदीम और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान में CPEC मंसूबों पर तेजी से काम हो रहा है, मगर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देकर अजीम मंसूबे के अहम तरीन हिस्से को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है।
2016 में ईरान को अजीम चीनी मंसूबे से दूर रखने के लिए मोदी सरकार ने बड़े चाव के साथ इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान को मिलाकर चाबहार बंदरगाह मंसूबे पर $400 मिलियन सफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए। वजह यह थी कि अगर अफगानिस्तान को चीनी मंसूबे से दूर रखा जाएगा तो गुजरगाह बंद हो जाएगी, मगर यह ख्वाब ताबीर तक ना पहुंच सका। कुछ अर्सा पहले चीन ने ईरान से 25 साल तेल फराहमी का मुआहदा किया, जिसके बाद चाबहार बंदरगाह भी वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा बन गई। सीपैक प्लस में चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की और ईरान शामिल है। ये रूट चीन को वस्त एशिया और तुर्की के रास्ते यूरोप से मिलाएगा। अब ये जानना मुश्किल नहीं कि भारत का कड़ा वक्त शुरू होने वाला है, चूंकि रूस, जो कभी भारत का हलीफ और चीन का हरीफ था, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ जुड़ चुका है। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान पहले भी आरसीडी इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं। गोया इंडिया अमरीकी मफादात की निगरानी करते करते खित्ते के ताकतवर ममालिक से कट चुका है। गुज़िश्ता किस्त में चीन की 500 साला जिद्दोजहद की तारीख पर नजर डाली थी। 15वीं सदी से चीन पर पुर्तगाल, बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और अमेरिका ने किस तरह कब्जा किया, किस तरह चीन की दौलत को लूटा, गुलाम बनाया। मगर आज 500 साल बाद मगरिब चीन का मोहताज नजर आता है। अमेरिका खौफजदा है। अमेरिका और यूरोप चीन की जियोपॉलिटिकल अप्रोच से परेशान है। सरमायादाराना निज़ाम खतरे में है। जमहूरियत पर सवालिया निशान लग रहा है। अहम सवाल यह है कि चीन ने 500 साल जिद्दोजहद से बगैर किसी हथियार मगरिब के खिलाफ जंग जीत ली। क्या अमेरिका और यूरोप इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के मैदान में जंग करेंगे या फिर हथियार उठाएंगे? तो दोस्तों, ये थी चीन और अमेरिका सर्द जंग। इससे पहले हमने तुर्क अरब और ईरान अरब सर्द जंगों का अहवाल आपके सामने पेश किया। इसका फीडबैक आप लोगों को ने बड़ा शानदार दिया है। बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर, आपकी पसंदीदगी देखकर। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मासूम रिजवी को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।